Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is your lecture number 7 regarding your course Classics in Drama. And in today's lecture, we will discuss introduction of Hamlet. Hamlet is written by William Shakespeare. Full title: The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. Type of work: play. Genre: tragedy, revenge, tragedy. Language: English. Time and place: written London, England. Early 17th century, probably 1600 up to 1602. Date of first publication: 1603 in a pirated quarto edition titled The Tragical History of Hamlet. Source of the play. As was common practice during the 16th and 17th century, Shakespeare borrowed for his plays ideas and stories from earlier literary works. तो उसकी जो ओरिजिनल स्टोरी है उसने जो पुराने लिटरेरी वर्क थे वहाँ से ली है. He could have taken the story of Hamlet from several possible sources, including a 12th century Latin history of Denmark compiled by Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, History of Danes, and a prose work by the French writer Francois de Bellay-Forest entitled Histories Tragiques. तो जहाँ तक हम प्ले के सोर्स की बात करते हैं तो हैमलेट का जो ड्रामा है इसकी जो स्टोरी है उसके डिफरेंट सोर्सेस हैं. शेक्सपियर ने जो है वो लैटिन से भी लिया, 12वीं सदी का जो लैटिन वर्क था, ठीक है. इसी तरीके से उसने कुछ प्रोज वर्क जो है वो फ्रेंच राइटर का भी लिया, जैसे कि इस स्लाइड में आपको बताया गया है. There are characters in Hamlet. First protagonist Hamlet. इसका जो प्रोटैगोनिस्ट है, हीरो है, हैमलेट हिमसेल्फ है. अदर कैरेक्टर्स क्लाडियस है. क्लाडियस इज द किंग ऑफ डेनमार्क, elected to the throne after the death of his brother, King Hamlet. King Hamlet जो उसका भाई था, उसकी डेथ के बाद क्लाडियस जो है वहाँ का किंग बन जाता है डेनमार्क का. क्लाडियस हैज़ मैरिड गर्ट्रूड, हिज ब्रदर्स विडो, यानी अपने भाई की जो बेवा थी उससे उसने शादी कर ली. Gertrude is the queen of Denmark and King Hamlet's widow, now married to Claudius and mother to Hamlet. The ghost appears in the image of Hamlet's father, the late King Hamlet, old Hamlet. अब बाप का नाम भी हैमलेट है और बेटे का नाम भी हैमलेट है. बाप का नाम है ओल्ड हैमलेट, ठीक है. उसकी शक्ल में एक घोस्ट जो है वो अपीयर होता है. प्लोनियस. प्लोनियस जो है क्लाडियस चीफ काउंसलर है एंड द फादर ऑफ ओफिलिया एंड लेयर्टीज. Laertes is the son of Polonius and has returned to Elsinore from Paris. Ophelia is the daughter of Polonius and Laertes' sister, who lives with her father at Elsinore. She is in love with Hamlet. Horatio is a good friend of Hamlet from the university at Wittenberg, who came to Elsinore Castle to attend King Hamlet's funeral.
Rosencrantz and Guildenstern are childhood friends and schoolmates of Hamlet, who were summoned to Elsinore by Claudius and Gertrude. Fortinbras, Norwegian crown prince, who assumes the throne of Denmark after Hamlet's death. Plot overview. Major conflict. Hamlet feels a responsibility to avenge his father's murder by his uncle. By his uncle Claudius, but Claudius is now the king and thus well protected. Moreover, Hamlet struggles with his doubts about whether he can trust the ghost and whether killing Claudius is morally appropriate thing to do. अब चूंकि लेट किंग का जो है वो घोष नजर आता है और वो उसे बताता है कि उसके फादर को जो है उसके अंकल क्लाडियस ने किल किया है, तो अब वो इस सोच विचार में है, इस कॉन्फ्लिक्ट में रहता है पूरे प्ले में कि उसको वेदर ही शुड किल हिज अंकल आर नॉट, टू बी आर नॉट टू बी। उसका फेमस जो है इसमें है सॉलिलकी कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। Renaissance spirit infused in revenge story. By modifying his source materials in this way, Shakespeare was able to take an unremarkable revenge story and make it resonate with the most fundamental themes and problems of the Renaissance. Original story of Hamlet. The raw material that Shakespeare appropriated in writing Hamlet is the story of a Danish prince whose uncle murders the prince's father, marries his mother and claims the throne. अब ये ओरिजिनल स्टोरी जो है वो डैनिश किंग से ली गई है, जहाँ पे वाकई ऐसा होता है कि डैनिश के प्रिंस को जो है मार दिया जाता है और उसका अंकल जो है वहाँ का प्रिंस बन जाता है और प्रीवियस प्रिंस की जो क्वीन होती है उससे शादी कर लेता है। The prince pretends to be feeble-minded, to throw his uncle off guard, then manage to kill his uncle in revenge. अब उसमें जो प्रिंस होता है, यानी जो जिस प्रिंस को कत्ल कर दिया जाता है, उसका जो बेटा होता है वो भी इसी तरीके से प्रिटेंड करता है कि वो मेंटली सही नहीं है। वो प्रिटेंड करता है और अपने अंकल को जो है वो कत्ल कर देता है एज अ रिवेंज। लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। द 16th century French humanist Michael de Montaigne was no less interested in studying human experiences than the earlier humanists. But he maintained that the world of experience was a world of appearances, and that human beings could never hope to see past those appearances into the realities that lie behind them. This is the world in which Shakespeare places his characters. Main objective of humanism. For the humanists, the purpose of cultivating reason was to lead to a better understanding of how to act. अब ह्यूमनिज्म का जो है वो बेसिक पर्पस क्या होता है, उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो अंडरस्टैंडिंग होती है, बेहतर अंडरस्टैंडिंग, देन यू विल बी बेटर एबल टू एक्ट इन योर एक्चुअल लाइफ। सबसे पहले आपने लाइफ को समझना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, एक्ट करना है। And their fondest hope was that the coordination of action and understanding would lead to great benefits for society as a whole. और फिर क्या है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी रहनुमाई करेगी जो सोसाइटी की बेहतरी है एज अ होल, यानी मजमूई तौर पे।
Its spread and skepticism. अब चूंकि रेनेसेंस का एक ये भी एलिमेंट था कि उसमें स्केप्टिसिज्म बहुत ज़्यादा थी, डाउट्स अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. As the Renaissance spread to other countries in the 16th and 17th centuries, however, a more skeptical strain of humanism developed. तो जैसे जैसे 16th सेंचुरी में, 16वीं सदी में रेनेसांस जो है वो स्प्रेड हो रही थी, यानी हर चीज़ का जो एक रिवाइवल था, रिन्यू किया जा रहा था चीज़ों को, डेवलपमेंट हो रही थी, दुनिया जो है वो तरक्की की जानिब जा रही थी, उसके साथ साथ आपकी जो स्केप्टिसिज्म थी, यानी डाउट्स जो थे वो भी डेवलप हो रहे थे. स्ट्रेसिंग द लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि इंसान की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो लिमिटेड होती है. फॉर एग्जाम्पल, Renaissance spirit infused in revenge story by modifying his source materials in this way. Shakespeare was able to take an unremarkable revenge story and make it resonate with the most fundamental themes and problems of the Renaissance. चूंकि ये कहानी भी जो है रेनेसेंस से ही ली गई है, रेनेसेंस दौर की ही है, उसको उस दौर को जो है क्या कहना चाहिए, क्लैरिफाई करने के लिए, उसको पोर्ट्रे करने के लिए ये कहानी बनाई गई है. राइजिंग एक्शन. The ghost appears to Hamlet and tells Hamlet to revenge his murder. अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हैमलेट को घोस्ट नजर आता है, जो इंडिकेशन उसको देता है कि उसके जो लेट फादर हैं उसको कत्ल किया गया है बाय हिज अंकल, और इसको जो है अपने क्या है बाप का बदला लेना चाहिए, रिवेंज लेना चाहिए. हैमलेट फेन्स मैडनेस टू हिज इंटेंशंस. अब वो क्या करता है कि अपने इरादों की तकमील के लिए वो फेन मैडनेस का मुजाहरा करता है, यानी एक्चुअली वो मैड नहीं था, लेकिन वो लोगों को क्या शो करवाना चाहता था कि ही वाज मैड. हैमलेट स्टेज द माउस ट्रैप प्ले विद इन प्ले. अब इसमें कहा जाता है कि हैमलेट के प्ले में एक और प्ले है, क्योंकि खुद हैमलेट एक प्ले है, इसके अंदर हैमलेट जो है एक और प्ले जो है वो क्या कहते हैं, लोगों के सामने उसका मुजाहरा करता है, ताकि जान सके अपने जो अंकल है क्लाडियस, उसकी फीलिंग्स को जान सके कि ईदर ही किल्ड हिज फादर आर नॉट. जानने के लिए उसको ये सब करना पड़ता है, उसको एक प्ले जो है वो परफॉर्म करवाना पड़ता है स्टेज पे, ताकि वो अपने अंकल के जो रिएक्शंस हैं उनको देख के जान सके कि हाँ वाकई ये उसके बाप का कातिल है. Hamlet forgoes the opportunity to kill Claudius while he is praying. अब उसी दौरान जब उसका अंकल जो है वो प्रे कर रहा होता है तो क्लाडियस और हैमलेट जो है फिर उसको किल कर देता है. Climax. When Hamlet stabs Polonius through the arrays in Act 3, Scene 4, he commits himself to overtly violent action and brings himself into unavoidable conflict with the king. अब प्लोनियस जो है वो फिलिया का फादर था, और जब वो अपनी माँ के साथ होता है हैमलेट, और प्लोनियस जो है वो पर्दे के पीछे उनकी बातें सुन रहा होता है, तो हैमलेट जो है उसको कत्ल कर देता है. An other possible climax comes at the end of Act 4, Scene 4, when Hamlet resolves to commit himself fully to violent revenge. उसमें भी क्या है कि वो खुद को रेडी कर रहा होता है, क्योंकि तमाम प्ले में हम देखेंगे कि वो कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, टू बी आर नॉट टू बी, कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास श्योरिटी नहीं होती, उसके पास कोई प्रूव नहीं होता कि हाँ उसके अंकल ने ही उसके फादर को किल किया है.
जस्ट टू गेट मैरिंग टू हिज मदर। सिर्फ उसकी माँ से शादी करने के लिए उसका जो अंकल होता है वो अपने भाई को जो है वो कत्ल कर देता है। Whether Hamlet's mother Gertrude shares in Claudius' guilt. Whether Hamlet continues to love Ophelia even as he spurns her in Act 3. Whether Ophelia's death is suicide or accident. Whether the ghost offers reliable knowledge or seeks to deceive and tempt Hamlet. And perhaps most importantly, अब इसमें भी होता ये है कि अब क्योंकि उसको यकीन नहीं होता कि कहीं घोस्ट उसको धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं उससे गलत काम तो नहीं करवाना चाहता, उससे सिन तो कमिट नहीं करवाना चाहता। Whether Hamlet would be morally justified in taking revenge on his uncle. अब ये सारे सवाल हैं उसके जहन में। Whether there is afterlife with rewards or punishment. कि इस जिंदगी के बाद जो नेक्स्ट जिंदगी आएगी क्या उसमें उसको रिवार्ड दिया जाएगा या फिर पनिशमेंट दी जाएगी। Whether justice can be found in this life or after death, whether we can never know the truth of our situation and then act with moral responsibility, कि क्या वो इसकी हकीकत जान पाएगा कि नहीं, क्या उसकी ये अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, कि उसको ये बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। The ghost appears to Hamlet, tells Hamlet to revenge his murder. Hamlet feigns madness to his intention. Hamlet stays the mousetrap play. Within play, Hamlet forgoes the opportunity to kill Claudius while he is praying. जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में भी बताया था, उसमें भी यही कुछ था कि वो जो है अब बदला लेने के लिए रेडी हो जाता है और उसके जहन में यही आता है कि उसको एक प्ले जो है वो परफॉर्म करवाना चाहिए हकीकत को जानने के लिए, ताकि वो अपने अंकल के रिएक्शंस को जो है वो चेक कर सके। Shakespeare makes it clear that the stakes riding on some of these questions are enormous. The action of these characters bring disaster upon an entire kingdom. कि अब बहुत सारे सवाल जो है वो जहन में आते हैं कैरेक्टर्स के हवाले से, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, उनका जो रोल है उसके हवाले से। एट द एंड ऑफ द प्ले इट इज़ नॉट इवन क्लियर वेदर जस्टिस हैज़ बीन अचीव्ड। यानी एंड पे भी अभी ये बात क्लियर नहीं होती है कि क्या जस्टिस हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि इसका एंड जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक होता है। Hamlet is sent to England to be killed. Hamlet returns to Denmark and confronts Laertes at Ophelia's funeral. The fencing match, the death of the royal family. अब उसको भेज दिया जाता है हैमलेट को, जब उसके अंकल को पता चलता है उसके थोड़े से इरादों के हवाले से, तो वो चाहता है कि क्यों ना हैमलेट से जान छुड़ाई जाए और वो उसको इंग्लैंड भेज देता है ताकि वहाँ इसका कत्ल हो जाए। लेकिन हैमलेट को जो है वो अपने अंकल की ये जो साजिश थी उसके बारे में पता चलता है और वो वापस जो है वो डेनमार्क आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो डेनमार्क आता है तो ओफीलिया की जो है वो डेथ हो चुकी होती है, सुसाइड कर लेती है और उसे पता नहीं होता कि ये किसका फ्यूनरल है, यानी जनाजा किसका है। तो यहाँ तक जो है वो आपको हैमलेट के हवाले से मैंने बताया है। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उससे कैरी ऑन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था कि हमने इसमें देखा, इसका इंट्रोडक्शन देखा ड्रामे का, कि हैमलेट जो है वो कब लिखा गया, कब इसको पब्लिश किया गया, इसकी सेटिंग कहाँ क्या है, इसका जो है वो किंग कहाँ का है, फिर इसके जो कैरेक्टर्स हैं, हैमलेट चूँकि इसका प्रोटैगोनिस्ट है, हीरो है, इसके अलावा दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनके हवाले से बताया, इसकी जो प्लॉट है उसके हवाले से बताया, फिर इस ड्रामे में जो कॉन्फ्लिक्ट है हैमलेट के माइंड में
कि टू बी आर नॉट टू बी, ठीक है, उसके अंकल के हवाले से कि क्या उसके अंकल ने वाकई उसके फादर को किल किया था या नहीं किया था, क्या इसको उससे रिवेंज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके माइंड में रहता है। इंशाल्लाह क्लास वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।